नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 7वां भारतीय संस्कृति उत्सव 3 जनवरी से मनाया जाएगा। बसवा कल्याण के प्रतापपुर रोड पर एक मालवाहक गाड़ी और ऑटो की टक्कर में एक शख्स की हुई मौत। बसवा कल्याण में छिद्रेण गार्डन के कर्मियों ने प्रवेश करने वालों पर रसीद मांगने पर किया हमला। 11वीं की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। सरपंच हत्या मामले पर मुख्यमंत्री फडणवीस सख्त, कहा गुंडाराज नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मुरादाबाद में मिला 44 सालों से बंद गौरी शंकर मंदिर, गर्भगृह की खुदाई में निकला शिवलिंग। अब समाचार विस्तार से। श्री कोट्ठल बसवेश्वर भारतीय शिक्षा समिति सेडम विकास अकादमी की ओर से 7वां भारतीय संस्कृति उत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जादूगर कोद्रूली गणेश जागृति जादूगर कार्य प्रस्तुत करेंगे। दिनांक 3 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे डीकेडीबी कल्याण मंडप बसवा कल्याण और दोपहर 2 बजे गुरु कृपा कल्याण मंडप भालकी। साथ ही 4 जनवरी सुबह 10 बजे और रात के नवचेतन पब्लिक स्कूल और शाम 4:30 बजे बीदर के पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में कुड्रोली गणेश जागृति जादू का प्रस्तुति 2 दिन के लिए रहेगी। आज बीदर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट कर विकास अकादमी के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। इस अवसर पर रेवन्ना सिद्धप्पा, जलादे कर्नल छन्नप्पा सिकेनपुर, बीएस कुद्रे, इसके अलावा अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರಣೀಯ ಕರ್ನಲ್ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಕೆನ್ಪುರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ BS ಕುದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮಂಗಳೂರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಬಸವರಾಜ್ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಹಡಪೋದವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜನವರಿ 29ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರವರೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ 9 ದಿನಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು, ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ 2000ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ತರಬೇಕು ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ನಾವು ಈ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರೀ ಬೀದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನೀವು ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು 2 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು 2 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 3 ಬ್ಯಾಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಊಟ ವಸತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮದೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ತರಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಟ್ಟು 70,000 ಜನರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅದು ರ್ಯಾಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆದಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ 51,000 ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. बसवा कल्याण शहर के बाहरी इलाके के प्रतापपुर रोड पर एक मालवाहक गाड़ी और ऑटो की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना में तालुका के प्रतापपुर गांव के निवासी विनोद गायकवाड़, जिसकी उम्र 35 साल
बताई गई है उसकी मौत हो गई है। घटना उस वक्त हुई जब वह प्रतापपुर गांव से ऑटो से बसवा कल्याण शहर आ रहा था। तभी सामने से आ रहे एक मालवाहक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। इस संबंध में नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। बसवा कल्याण के तिपुरांत के पास जो चिल्ड्रन गार्डन है, उस गार्डन में एक घटना घटी जहां बीकेडीबी कर्मियों ने जनता पर तब हमला किया जब उन्हें पार्क में प्रवेश करने वाले लोगों से पैसे वसूलने के संबंध में रसीद मांगी। नरसिंह रेड्डी गंदले गांव ने मांग की है कि बीकेडीबी अधिकारियों को जनता पर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। चिंचोली तालुके के होसल्ली गांव में ग्राम पंचायत सदस्य संतोष होसल्ली अपने खेत में एलामासी मनाई। वे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर गांव में प्रचलित हैं। बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाया गया। इस अवसर पर संतोष होसल्ली ने के मित्र और परिवार के लोग आदि मौजूद रहे। चिंचोली से केपी न्यूज के संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। गोरखपुर में 11वीं की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर किया आत्महत्या। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुटी। शत्रुघ्नपुर टोला बनहरवा निवासिनी बंदना पुत्री नरसिंह गौड़ा के रूप में हुई है मृतिका की सिनात्रा। मृतिका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के करमहल रेलवे ओवरब्रिज के पास की घटना। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बीड जिले के मसाजोग गांव में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को साफ कह दिया है कि गुंडाराज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उस मामले में किसी की भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अनुसार सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के पीछे एक बड़ी जबरन वसूली का मामला है। बीड जिले में पवन चिक्कैया स्थापित करने वाली एक ऊर्जा कंपनी से कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही थी। देशमुख ने इस जबरन वसूली को विरोध किया था, जिसके बाद 9 दिसंबर को उनका अपहरण किया गया और फिर हत्या कर दी गई। उनकी मौत के बाद मामले की तुल पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने दिवंगत संतोष देशमुख के भाई से बात की और उन्हें बताया कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक दोषियों को फांसी नहीं हो जाती, पुलिस अपना काम जारी रखेगी। भीड़ मामले में शामिल सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलेगा। हम गुंडाराज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेना या निवासियों से उगाही करने की कोशिश करेंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस उन संदिग्धों का पीछा कर रही है और फरार कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणा के दक्षिणी राज्य पर मिनी पाकिस्तान के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय बताया और कहा कि ये केरल के खिलाफ घृणा अभियान को दर्शाता है। इस पर पोस्ट करते हुए विजयन ने लिखा, महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे की केरल को मिनी पाकिस्तान करार देने वाली अपमानजनक टिप्पणी अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय है। इस तरह की बयानबाजी धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के गढ़ केरल के खिलाफ संघ परिवार द्वारा चलाए जा रहे घृणा अभियानों को दर्शाता है। हम केरल पर इस घृणित हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष
ताकतों से संघ परिवार के घृणित प्रचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हैं। पुणे के उरुली कंचन क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर गैस से भरा सिलेंडर रखकर दुर्घटना करने की कोशिश की गई। इस घटना का खुलासा लोको पायलट की सतर्कता से हुआ। इस संबंध में कंचन पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना उस वक्त सामने आई जब लोको पायलट शरद शाहजीवाल के उम्र 38 वर्ष रेलवे लाइन का निरीक्षण कर रहे थे। रविवार रात करीब 11 बजे जब वे ट्रेन पर निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक के पास प्रिया गोल्ड कंपनी का गैस सिलेंडर रखा हुआ था। जब उन्होंने सिलेंडर उठाने की कोशिश की तो देखा कि इस सिलेंडर में गैस थी। लोको पायलट ने तुरंत सिलेंडर को रेलवे ट्रैक से दूर हटा दिया और संभावित दुर्घटना को विफल कर दिया। शरद वाल्के ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद उरुली कंचन पुलिस ने रेलवे की धारा 150-152 के तहत अज्ञात व्यक्ति पर दुर्घटना का प्रयास करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। दौंड डिवीजन के उपविभागीय पुलिस अधिकारी बापूराव दादास और उरुली कंचन पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक शंकर पाटिल ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीते महीने उत्तर प्रदेश के कानपुर में से ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां ट्रेन को उड़ाने की साजिश से पटरी पर गैस सिलेंडर रखा गया था। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संभल, वाराणसी और बुंदलशहर के बाद अब मुरादाबाद में भी 44 साल के से बंद गौरी शंकर का मंदिर मिला है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम ने जब गर्भगृह की खुदाई की तो उन्हें वहां मलबे में दबा शिवलिंग मिला और इसके साथ ही कई खंडित प्रतिमाएं भी बरामद की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक साफ सफाई के बाद मंदिर में फिर से प्रभु की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। जानकारी के मुताबिक 44 सालों से बंद इस गौरी शंकर मंदिर में नंदी, गणेश, कार्तिकेय और भगवान हनुमान की खंडित प्रतिमाएं मिली हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने इस मंदिर में साफ सफाई कराई। हालांकि अब तक यह सामने नहीं आया है कि इस पर किस प्रकार कब्जा किया गया था। कई सालों से बंद रहने के कारण इस मंदिर की स्थिति काफी खराब हो गई है। अब मंदिर में साफ सफाई करवाने और रंग करवाने के बाद एक बार फिर प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और इसे पूजा अर्चना की स्थिति में लाया जाएगा। मंदिर के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि इसके दोनों द्वारों को 1980 में मलबा डालकर चुनवा दिया गया था। साथ ही यह भी सामने आया कि 1980 के दंगों में पुजारी की हत्या होने के बाद से ही मंदिर बंद था। रिपोर्ट्स के अनुसार पुजारी के पोते ने एक हफ्ते पहले ही मुरादाबाद के डीएम को एप्लीकेशन लिखी थी और मंदिर को दोबारा खोले जाने की गुहार लगाई थी। बता दें कि शिवगौरी मंदिर में रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। इस मंदिर को जिला अधिकारी अनुज कुमार के निर्देशन पर प्रशासन लगाकर खुलवाया गया। वहीं कल नगर आयुक्त जीर्णाधारी को लेटर दिया गया। इसके बाद प्राचीन गौरी शंकर मंदिर के अंदर रंग पुताई का कार्य चलाया गया। पुलिस बल मौके पर तैनात है। जानकारी देते हुए नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश अनुसार बंद पड़े गौरी शंकर मंदिर को खुलवाकर उसकी साफ सफाई करा दी गई है। इसके बाद इसकी रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो गया है। पत्थर और टाइल्स की जैसी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने के बाद स्थापना और अनुष्ठान कराकर पूजा पाठ के लिए जनमानस को सौंप दिया जाएगा। मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसने हाईवे की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वाशिम जिले के मालेगांव और वनोजा टोल प्लाजा के बीच सड़क पर लोहे का बोर्ड
गिरने के कारण 50 से अधिक गाड़ियां पंक्चर हो गईं। यह घटना रात करीब 10 बजे हुई, जिसमें कई पहिया वाहन और ट्रक प्रभावित हुए। हाईवे पर अचानक हुए इस हादसे के कारण यातायात जाम हो गया और यात्रियों को रात भर हाईवे पर फंसे रहना पड़ा। स्थानीय प्रशासन की ओर से सहायता पहुंचने में काफी देर हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बात की जांच की जा रही है कि लोहे का बोर्ड गलती से गिर गया या इसे जानबूझकर फेंका गया। हाईवे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि घटना की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब समृद्धि हाईवे की सुरक्षा पहले से ही सवालों के घेरे में है। जून में जालना जिले में 2 कारों की टक्कर के कारण 6 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद से ही यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में वायु गुणवत्ता खराब होने के चलते बृहद मुंबई नगर निगम ने शहर में जीआरपी 4 मानदंड लागू करने का फैसला किया। मुंबई के जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 200 से ऊपर है, वहां सभी निजी और सार्वजनिक निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया कि मुंबई के जिन क्षेत्रों में AQI 200 अंक से अधिक है, वहां जीआरपी ग्रैप 4 मानदंडों के तहत सभी निर्माण स्थलों पर काम रोका गया। AQI 200 को पार कर जाता है तो डेवलपर्स को कोई भी काम रोकने का नोटिस जारी किए बिना नियम तुरंत लागू कर दिया जाए। बीएमसी प्रशासन ने बताया कि अभी मुंबई के बोरीवली ईस्ट और बाईकुला में निर्माण कार्य को बंद किया गया, जहां लगातार खराब AQI पहुंच रहा है। बीएमसी ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो जाता, तब तक शहर में खुदाई के लिए कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी। काम रोके जाने की नोटिस के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहता है तो संबंधित डेवलपर्स को महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम की धारा 52 के तहत दंडात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तालिबान लड़ाके डुरंड लाइन क्रॉस पर पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं। इसी बीच तालिबान से जुड़े तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित एक पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करके का कथित वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तहरीके तालिबान के सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने सोमवार को उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के कबायली जिले बाजौर में पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इस चौकी को खाली करवाया गया और यहां से सुरक्षा कर्मियों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान सेना और अफगान लड़ाकों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब तहरीके इंसाफ तालिबान पाकिस्तान ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तान सेना के 30 जवानों को मार गिराया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने हवाई हमला किया। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले में महिलाओं और बच्चों की मौत हुई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 7वां भारतीय संस्कृति उत्सव 3 जनवरी से मनाया जाएगा। बसवा कल्याण के प्रतापपुर रोड पर एक मालवाहक गाड़ी और ऑटो की टक्कर में एक शख्स की हुई मौत। बसवा कल्याण में छिद्रेण गार्डन के कर्मियों ने प्रवेश करने वालों पर रसीद मांगने पर किया हमला। 11वीं की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। सरपंच हत्या मामले पर मुख्यमंत्री फडणवीस सख्त, कहा गुंडाराज नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मुरादाबाद में मिला 44 सालों से बंद गौरी शंकर मंदिर, गर्भगृह की खुदाई में निकला शिवलिंग। केपी न्यूज 24/7 में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।